حمد بن گیا. اب دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ورب کی وہ اسم کی قسمیں بولے تھے کتنی ہوتی ہیں؟ 2. کون سی؟ اینڈ پراپر ناؤن. کامن ناؤن پراپر ناؤن. ہاں یعنی اس میں عام اور اس میں خاص. اب حمد اس میں عام ہے یا اس میں خاص ہے؟ خاص ہے. کیسا خاص ہو یہ گیا؟ صرف اللہ تعالیٰ. حمد کیا ہے؟ تعریف. اس میں عام ہے. تعریف کس کی؟ تمہاری تعریف، بڑا اچھا شاعر ہے، تعریف ہوگی. تعریف ہے بس، اور کیا ہے؟ عام چیز ہے، عام بات ہے. حمد ہو گیا. حمد کے معنی اس میں عام، کامن ناؤن ہو گیا. اب عربی زبان میں کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. الف لام اگر جمع کر دیے تو یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. الحمد. پراپر ناؤن ال آ جانے سے پراپر نام ہو گیا. پراپر ناؤن بن گیا. اب یہ خاص تعریف. اب حمد سے آپ کے ذہن میں قرآن پڑھتے ہیں یا پھر تعریف کے بارے میں اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی یوز ہوتا ہے. کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ ہم سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں، ہم سے ڈرائیوڈ ہیں؟ بتائیے، غور کریے. ایک کوئی اتنا بڑا مشکل سوال نہیں کر رہا ہوں، کون جیتے گا، ٹرمپ جیتے گا یا ہلاری جیتے گا، ایسا نہیں. کتنے ایسے الفاظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمود. کہاں سے نکلا؟ ہم روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمیدہ ہے. اسی سے محمد، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اور کیا کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ احمد کہاں سے نکلا؟ ہاں. اور تعریف کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. محمود. جس کی تعریف کی گئی محمود ہے. اور تعریف کرنے والا کیا ہوگا؟ جو تعریف کرتا ہے کسی کی، اس کو کیا کہیں گے؟ حامد کہیں گے. حامد. سارے حمد سے نکل رہے ہیں. حامد. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی حمد سے نکلتا ہے. اس میں الف حمید، اس میں الف لام داخل کرے تو اللہ کا اس میں صفات بن گیا. الحمید المجید، الحمید المجید، جو تعریف کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. تو حمد میں الف لام داخل کرنے سے کیا بن گیا؟ وہ پراپر ناؤن بن گیا. اس سے کئی اور ورڈ نکلیں گے جو اس کے ڈیریویشنز کہلائیں گے. اس کو پھر الف لام سے حمد کو وہ 3 خانوں میں کہاں رکھیں گے؟ ناؤن. اسم میں رکھیں گے. پراپر ناؤن ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے. پہلا جو سورہ فاتحہ کا لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ الحمد. اس کے لیے ایک ڈیریویشن یاد، ایک ایبریویشن یاد رکھیے. یہ پورے کلاس ختم ہونے تک، میری زندگی ختم ہونے تک یہ ایبریویشن استعمال ہوگا. اس کے ایبریویشن ہے DWR، سوری DRW، derived from root word. derived from root word. ایسا تمام اسم جس کو روٹ ورڈ سے ڈرائیو کرے، اس کے لیے کیا لکھیں گے ہم؟ DRW. اب ہم یہاں لکھ رہے ہیں DRW حمیدہ. حمیدہ. DRW حمیدہ. ٹھیک ہے. DRW حمیدہ. ڈرائیو فرام روٹ ورڈ. حمیدہ روٹ ورڈ سے الحمد نکلا. دوسری بات، یہ صرف ایک ہی جگہ سورہ فاتحہ میں استعمال نہیں ہوا. محمد بھی آیا ہے، محمود بھی آیا ہے، حامد بھی آیا ہے، الحمید بھی آیا ہے.
कुरान में मुख्तलिफ जगह ये रूट वर्ड ड्राइव्ड फॉर्म में आया है। कितनी जगह आया होगा किसी को नहीं मालूम, मैं बता दूँ। कुरान में पहले ही नहीं बताया। 68 टाइम्स 8 छूट गए। हमीदा का जो ड्राइव्ड फॉर्म है, एक बार हमीदा याद रख लोगे तो पूरी कुरान में जहाँ पर भी हमीदा से ड्राइव्ड फॉर्म हामिद होगा, मोहम्मद होगा, महमूद होगा, अल हमीद होगा, जितने भी आएंगे हमीद मजीद, तो वहाँ पर फौरी समझ में आ जाएगा कि वो हमीदा से ड्राइव्ड है। ठीक है। उसके बाद का एक हर्फ है जिससे आपका नाजरा भी ठीक होगा। देखिए अल्हम्दु खत्म हो गया, ये पढ़ लिया। उसके बाद का सेकंड वर्ड क्या है? पूरा वर्ड नहीं है ना, ली दूसरा वर्ड क्या है? ली है। उसके बाद क्या है? अल्लाह। अल्लाह है। अगर समझिए मैं ली को निकाल दिया, बीच में से हटा दिया, अल्हम्दु अल्लाह, कोई मायने निकल रहे? इसके लिए बीच में किस चीज़ की ज़रूरत है? ली की ज़रूरत है ना, ली की, कि दो इस्म के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है कि एक इस्म अलहम्द है और एक इस्म अल्लाह है। वो अलहम्द किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह ड्राइव्ड फॉर्म है या वो इसमें ज़ाती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहीं से ड्राइव्ड हुआ उन्हें? नहीं हुआ, तो उसको हम DRW नहीं लिखेंगे। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा वर्ड क्या है? ली है। इसको तीनों में कहाँ डालूं मैं? हर्फ में डालूंगा। ये कुल 18 हैं, बहुत जगह इस्तेमाल हुए हैं, तो इनकी तादाद मैं नहीं लिखूंगा, बात की लिखूंगा। ली, इसके मैंने आम तौर पे ली भी इस्तेमाल होता है, ला भी इस्तेमाल होता है के लिए, या अंग्रेजी में फॉर। ये हर्फ हो गया। तीसरा वर्ड क्या है? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह जो है अभी बताया कि DRW लिखेंगे इसको। नहीं इसमें आ ये अल्लाह का इसमें ज़ाती है, इसको इसमें आज़म कहते हैं। इस नाम से जो दुआ मांगी जाए तो अल्लाहुम्मा कहते हैं सल्ले अला मुहम्मदिन, वो दुआ रिजेक्ट नहीं होती। है अल्लाह कह के इसमें आज़म भी कहते हैं, इसमें ज़ाती भी कहते हैं, है ना। सिफाती नहीं है। 99 नामों में से एक नाम इसमें ज़ाती है, 98 नाम इसमें सिफाती है। अब दूसरी बात यह है कि कितने बार अल्लाह आया होगा कुरान में? कितने बार अल्लाह आया होगा कुरान में? 2697 times. 2697 times. 2700 हो गए ना, 3 हो गए। 2800 2700 तकरीबन। 2697। 2697 पूरी कुरान में। कुरान की एक सूरत तो ऐसी है कि उसकी हर आयत में कम से कम एक बार अल्लाह का नाम और एक से ज़्यादा बार भी आया है। 22 आयतों की सूरत है जिसमें 37 बार अल्लाह का नाम। कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह का नाम नहीं आया। कौन सी आयत, कौन सी सूरत है? वो है हाँ सूरे हाँ, क्या थी वो? 22 आयतों की सूरत है जिसमें 37 बार अल्लाह का नाम आया है। हर आयत में अल्लाह का नाम है, एक से ज़ायद बार। नहीं, सूरह रहमान में बहुत आए थे। वो तो परसों पूछे थे ना,
हाँ ये परसों वो इब्राहिम हमने भी साबरी। इब्राहिम साबरी भी पूछा था सवाल, बोल सूरह रहे। मुजादिला है क्या? नहीं सूरह फुरखान? नहीं साथ क्या है वो, कौन सी सूरत है? नहीं। नहीं, छोटी सूरत में से बड़ी? 22 आयतों की सूरत है, उसमें 37 बार है। सूरह तहरीम पढ़ के आए हैं आप? सूरह तहरीम तहरीम है वो? तहरीम में है, निकालो, लो यहाँ है, निकालो जल्दी से, सूरह तहरीम। निकालो। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह। जी हाँ, बराबर। सूरह तहरीम 28वां पारा 28वें पारे में की आखिरी सूरत। जी। सूरह तहरीम, हाँ 22। 22 है। नहीं आपका निकालो। कंप्यूटर ही खराब हो गया क्या नबी जा? ये लिया तहरीम, तहरीम 28वें पारे की आखिरी हम्म, तहरीम। या अय्युहन नबी या अय्युहल्लज़ीना कहाँ गए? ये ना या अय्युहन नबी इज़ा लिमा तलक़्तुम तुहर्रिमु मा निसा अहल्लल्लाह फ़रज़ल्लाहु लकुम वसर्रन नबी अला बाद। इद्दतिहिन्ना व अहसिनु इद्दतल्लाह। देखते जाओ 22 से आयतें, हाँ है तो 22 है। उसमें हर आयत को एक नज़र देख लो। सूरह तहरीम में कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह का नाम कम से कम एक बार, हर आयत नहीं, में सूरह एक से तहरीम में- ज़ायद बार भी आया। 20 ही है। 20 है, 22 20 नहीं है नहीं भैया। 12 तो ये 66 दूसरा। नंबर है ना, ये 66 नंबर है ना सूरा। हाँ 66। भी 12 है। मैं 12 लिखा हुआ है। 12 दूसरे रुकू की हैं, पहले रुकू की 7। इसके बाद मैंने ये अय्युहन नबी अच्छा नहीं 12 ही है आयतें, टोटल आयतें 12 पास है। भी 12 लिखा है। 12 है वो आगे से। नहीं 12 बराबर। बड़ी बड़ी आयतें हैं लेकिन 12 है। हाँ, बाकी कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह नहीं होगा। अल्लाह का नाम। चलिए, तो अल्लाह का जिक्र कितने बार आ गया? 26 269 अब देखिए, हमें कहा तभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि लक़द खलक़नल इंसान, सॉरी लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। आखिरी आयत में नहीं है इसमें अल्लाह का नाम। हो ही नहीं सकता बेटा, होगा, हो ही नहीं बहुत- सकता, आखिरी तो बहुत बड़ी है। हो ही नहीं सकता बेटा। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। नहीं तहरीम पढ़ रहे हैं जी, बाकी सब आयतों में तो है लेकिन आखिरी में नहीं है। नहीं। और इसमें भी नहीं है ये वाली आयत या अय्युहन नबी। नहीं वो सूरह तहरीम नहीं था वो, मेरे को भी याद है सूरह तहरीम नहीं था वो। एक मिनट सूरह के नाम देख लेता। सूरह तहरीम नहीं था वो। पूरा तहरीम ही है। तहरीम ही है बस। नहीं आप देखिए आखिरी आयत देखिए। अभी तो खोला, इसमें था हर आयत में कुछ अल्लाह का है उसमें। नहीं था, नहीं आखिरी आयत में नहीं है। आखिरी में भी नहीं है, वो भी नहीं है ना। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मैं बताता हूँ एक मिनट, शायद वो थी सूरह हुजरात थी शायद, नहीं सूरह हुजरात नहीं। इसी कोई नाम था। नहीं हुजरात भी नहीं, कौन सी? सूरह तहरीम की है 28वें का आखिरी ना। हाँ 28 का आखिरी। सूरों के नाम वैसे हर एक में है। सूरह तहरीम है, लेकिन वो दूसरी सूरत थी जो अभी हमने, उसमें तो 12 आयतें थी ना, इसमें तो यही है 12 है। 22 वाली कौन सी है? सूरह हाँ। तहरीम 22 याद आ गया, मुजादिला। मैं अभी बोला भी था मुजादिला। मुजादिला में नहीं है। मुजादिला याद आ निकालो। गया। मुजादिला में दूसरी आयत में भी है, 22 है इसमें आयतें। 22 है ना मुजादिला में? 3 बार मैं अभी अच्छा। बोला मुजादिला हाँ ठीक है 22। बराबर। हाँ 22 में 37 मरतबा है ना? जी हाँ हर आयत में है इसके अंदर। देख लो एक 7 बार है, मुजाद अल 8 है, मुजादिला 9, 10, 11 आयत में भी है। देख लो हर एक में हुआ। हाँ तहरीम नहीं मुजादिला ही, 12, सॉरी 13, अल मुजादिला। 15, 16 में भी है, 17, 18 में भी है। हाँ अल मुजादिला ही हो, सॉरी। जी हाँ बराबर है। पूरों में, बल्कि किसी में तो बहुत है, एक से ज़्यादा बार 37 22 आयतों में 37 बार। बराबर, ये बराबर। सॉरी वो तहरीम नहीं है। मुजादिला। चलिए, इसके बाद अल्लाह का लफ्ज़ आ गया, 3 हो गए। उसका चौथा लफ्ज़ क्या है?
रब है। ये कहाँ से निकला होगा? ये ये वो है ना, ये तो इसमें है ये भी। इसमें है, नाउन है, रब तो रब है तो रब है। जी। इसका रूट वर्ड होगा इसका रूट वर्ड की क्या जरूरत है? होगा रब र ब बा, इसको मिलाएंगे तो रब्बा होगा। ये हरफ में तो नहीं आएगा ना नहीं, 3 हरूफ है। सर? ये नाउन में आता है। बिल्कुल रब्बा 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 होगा। वो पावरफुल हुआ रूट वर्ड है ना, वो रब यानी सगीरा बहुत जगह आया है, अभी बताएंगे। रब्बा, तो ये ड्राइव्ड, रब इज द इस्म, और वो जो है ड्राइव फ्रॉम रूट वर्ड रब्बा। तो ये पंजाबी में भी बोलते हैं ना, आयो रब्बा बोले। वो अलिफ आता है ना। इसमें कहाँ डालेंगे इसको? इसमें आ गए ना। हाँ? इसम में उर्दू में ये अपने पास इस्तेमाल होता है ना रबूबियत में। 3 वर्ड कहाँ है? 3 रे बे बे दो लफ्ज है ना, रे तजदीद आ गई। हाँ। रूट वर्ड ये बे बे फिर शद्दा आके उस पे जबर आ गया तो रब बा, 3 हो गए ना। रे बे बे, यहाँ लिखा ना, रे बे बे। अब इसको मुख्तसर करके जब लिखेंगे तो बे पे तजदीद आएगी और उस पे जबर आएगा, रब्बा। 3 हुए नहीं लेटर्स? जी जी 2 आ अपने गए। पास उर्दू में उसमें इस्तेमाल होता है ना, रुबूबियत का तकाजा है। चलिए, रब हो गया। इसके आगे लिखेंगे ड्राइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड रब्बा। रब्बा के मायने दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है, तमाम मुफस्सिरीन का ख्याल है, जो अल्लाह के एक मायने बता सके या रब के मायने बता सके। एक लफ्ज़ में, एक लफ्ज़ में रब के मायने बता ही नहीं सकती कोई दुनिया की ज़बान, सिर्फ अरबी ज़बान ही बताएगी। इन्हें जो इब्तिदा से इंतहा तक हर चीज़ की, हर मामले में हाजत पूरी करे। हाजत भी पूरी करता है, उसकी तमाम ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है, और उसके तमाम मराहल जितने हैं, उसकी ग्रोथ का, उसकी तकदीर का, सारी चीज़ों का ख्याल जो रखने वाला होता है वो रब होता है। ये भी तफसीर भी होगी। अभी तो हम जो है जो काम कर रहे हैं उसका नाम है वर्ड स्टडी। क्या कर रहे हैं हम? वर्ड स्टडी। बस उसका तफसीर होगी। इससे पहले ये वर्ड स्टडी कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में वर्क स्टडी करते हैं, हाँ? वर्क स्टडी होती है ना यूनिवर्सिटी में, वर्क वर्क प्लस स्टडी। कोई गेस कर सकते हैं रब्बा पूरी कुरान में कितनी बार? रब्बा यानी सगीरा, रब्बा एक बार रब्बुल सूरह फातिहा अर्शिल में अज़ीम। सीख लो तो सारी कुरान में जब भी रब आएगा उसके मायने मालूम होंगे तफसीर में, और मज़ीद रब के मायने तफसीर में आएंगे। 2500 बार तो आना ही चाहिए आसपास। नहीं, 955 अच्छा, कम है। 955 दफ़ा पूरी कुरान में 955 बार रब्बा इस्तेमाल हुआ। ड्राइव फ्रॉम रूट वर्ड रब्बा। रब रब माँ बाप के लिए भी दुआ की जाती है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कमा रब्बयानी सगीरा। चलिए, उसके बाद का लफ्ज़ क्या है? आलमीन। आलमीन। रूट वर्ड क्या है इसका? अलमा अलमा। आलमा। 3 वर्ड है, इसके कई माने निकलते हैं। मा, इसके माने जानने के भी हैं, हालत के भी हैं, ज़माने के भी हैं, एक ख़ास पीरियड के भी हैं। ठीक है। अब ये आलमीन सारे मानों में यहाँ उसकी जमा है। आलम से आलमीन, आलम से आलमीन। तो रूट वर्ड है, उसके ड्राइव्ड क्या है? प्लूरल या जमा, आलम की आलमीन। जमा हो गई है। हाँ, रब्बुल आलमीन।
सिंगुलर है या प्लूरल है? आलमीन प्लूरल है सर। प्लूरल है। Plural है सर। और TRW आएगा इससे पहले? आलामा से Alama. Derived from root word alama. alama रूट वर्ड कितनी बार आया होगा कुरान में? अच्छा जिसके- अल्लामा। alama. नहीं बहुत बार आया होगा। 150 क्यों? Age 54 times. 854 times alama का डेरिवेशन फॉर्म इस्तेमाल हुआ। 86,000 में से काफ़ी कवर हो गया ऑलरेडी। अभी तो आप देखेंगे सूरह फातिहा के 27 कलिमात में कितने कुरान के कलिमात, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर। एक सूरह फातिहा पढ़ लो तो कितने हज़ार अल्फाज जो कुरान में आगे आने वाले हैं सारे सूरह फातिहा में मौजूद हैं। उसको अच्छी तरह से याद कर लो तो वो सारे अल्फाज रिपीट होने वाले। एक आयत में जो आ गया उसको टोटल करके बताओ, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, सिर्फ एक ही आयत में 68 प्लस 2697, जल्दी जल्दी डालो एक आयत में। 955 854 955 into 854 इंटू नहीं बाबा प्लस तो बहुत हो जाएंगे इंटू करेंगे तो। 4,574। सिर्फ एक आयत में जो 1 2 3 4 मुझे इसमें आए हैं, कितना है इसका टोटल? इसके लिए एक्यूरेट गैस 4574 सर। 4574 4 5 74। 4574 हम टोटल कवर करेंगे। और हम क्या कहते हैं 87,000 हैं। सिर्फ एक आयत में जो अल्फाज हैं कुरान में 4,574 बार इस्तेमाल हुए हैं। अब है नहीं कुरान आसान। अब पूरी कुरान में जब भी हमद आएगा, हमदा आएगा, अल्लाह आएगा, रब आएगा, आलम आएगा, अलमा आएगा, ये अल्फाज तो 4 5 4 हैं, 1 2 3 4। इसके मायने अगर याद हो गए तो कुरान के 5,000 अल्फाज आपको याद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अम्मा पारा अम्मा कर लें उसके सारे अल्फाजों का पढ़ लें तो कुरान ही आपने आप पूरी कुरान कर सकते हैं, मगर सिंसियरली अगर उसको इस तरीके से इंशाअल्लाह हम ख़त्म करेंगे अम्मा पारा, इंशाअल्लाह। इस तरह से अम्मा पारा ख़त्म करेंगे कि हर लफ्ज़ कितनी बार आया जो रिपीट हुआ उसको हम दोबारा नहीं बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे। इस रेफरेंस दे देंगे सूरह फातिहा में पढ़ के आ गए हैं, वह नंबर भी आ गया कितनी बार आया, यहाँ आ गया। अम्मा पारा पढ़े तक आप कितने हज़ार अल्फाज जो है आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो कुरान शरीफ के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 87,000 अल्फाज में से अल्फाज में से 4,500 सिर्फ एक आयत अभी आप करें, एक आयत 5% अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर ही आ गए। हाँ 5% तो यहीं आ गए। हाँ परसेंटेज मेरे को नहीं आया, निकालना निकाल के देख। मैं एक अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ 5% 4% एक आयत में आ गया। एक सूरह के अंदर 10% होते तो एक आयत में आ गए 8,700 होते थे। 5,000 हो गए। 4,000 हाँ ज़्यादा ही हो गया बल्कि। 5% होगा। हाँ 5% से ऊपर ही हो गया माशाल्लाह एक आयत में। एक आयत में और एक सहूलत क्या है, देखिए इसमें आप जब एक एक लफ्ज़ कर रहे हैं, अगर किसी का नाजरा ख़राब है पूरा अम्मा पारा पढ़े तक ये गारंटी है इंशाअल्लाह आपका नाजरा भी दुरुस्त हो जाएगा। एक लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं वो लफ्ज़ आपके नाजरे को दुरुस्त कर रहा है। अलहम्दु पढ़ेंगे, अम्मा पढ़ेंगे, यतसालून हम पढ़ेंगे, उसका रूट वर्ड मालूम करेंगे, साला, आपका नाजरा भी ठीक हो रहा है। वो साला कितनी बार आया वो भी उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से वोकैबुलरी भी आपकी बढ़ेगी। अभी इसके बाद थर्ड स्टेज पे वर्ड स्टडी है, फ्रेज स्टडी होगी, उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह। अब की बार 11 साल नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मैं उसका भी एक पूरा प्रोग्राम सेट कर रहा हूँ जिसमें से 1 2 3 4 तो पहले 4 5 ग्रेजुएट हो जाएंगे। ज़रा थोड़ा सा मुझे आप एक पेपर पे ये लिख के दें, आप गौर करके घर जाके देखिए।
آپ کون سے سورہ میں ہم کو جوائن کرے تھے ڈاکٹر صاحب؟ کون سے سورہ میں آپ ہم کو جوائن کہیں آپ کو یاد ہوگا کہاں سے شروع کرے تھے؟ میں تو بہت ہی شروع میں تو میں بالکل ہی ایسا تھا نا کہ ایک ہفتے آیا ایک ہفتے نہیں آیا. جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ اس مجھے وقت. سمجھ آ رہا تھا. آپ مجھے آج سے ہی کام کیجیے. میں آج سے شروع ہوگا. یہ نہیں ماننے والے. نہیں یاد سچی بات ہے جھوٹ نہیں یاد نہیں مجھے کیونکہ ایک ہفتہ آیا ایک ہفتہ نہیں آیا. نہ مجھے پڑھنا آتا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا پڑھائی ہو رہی. اب دیکھیے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ بہت فائدہ ہو. یہ ابھی انشاءاللہ پارے اما تھوڑا ٹائم لگ جائے کوئی بات نہیں, کوئی بات مگر وہ 11 سال نہیں لگیں گے. میں نہیں آپ 11 بھی لگا لیں. اللہ نہیں 11 نہیں لگیں گے انشاءاللہ. میں کیلکولیٹ کر کے دیکھا اگر اس طرح سے ہم کچھ ڈیوائیڈڈ کام صحیح پلان سے اگر کریں گے تو آج الیکشن کا رزلٹ ہے, اگلے الیکشن کے رزلٹ تک انشاءاللہ ہم قرآن کمپلیٹ کریں گے. اس لیے کہ اب میرے پروگرام میں یہ ووکیبلری ہر دن میں آپ کو الحمد کے معنی نہیں بتاؤں گا, رب کے معنی نہیں بتاؤں گا, عالمین کے معنی نہیں بتاؤں گا. اب ہم جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو نیا ورڈ آیا ہم اس کو دیکھیں گے. ویسے ہم لوگ بھی ایک ورڈز کا ایک جنرل رکھ لیتے ہیں. ہاں یہ فولڈر بنا کے لانا پڑے گا. ایک کاپی رکھیے, ایک کاپی رکھیے, اس کاپی میں نوٹ کرتے جائیے. جنرل میں جیسا کتنے ٹوٹل اگر ان ریپیٹیڈ ورڈز دیکھیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 6000. ٹھیک ہے, اگر قرآن میں ان ریپیٹیڈ ورڈز دیکھیں وہ جو ہے روٹ ورڈ جتنے ہیں قرآن میں جس سے سارے ورڈ نکلے ہیں وہ ہے 1935. ان کی تعداد کل 1935. 2000 بھی نہیں ہے وہ تو. صرف 1935 روٹ ورڈز ہیں قرآن میں. 1935. بس ایک 3 پیجز اگر 4 پیجز اگر چھوڑ دیے کالمز بنا کے تو 2000 ورڈز کے لیے کتنے چاہیے شروع میں؟ تو ہم کو ورڈز پورے اس میں آ جاتے انشاءاللہ. بس وہ ایک سیکشن ہوگا. جی ہاں شروع میں پورے روٹ ورڈز کا. ہر سورہ کا ایسا ایک چارٹ بنے گا. اس کے صرف 3 ہی کیٹیگریز ہیں, اسم ہے یا پھر حرف ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے, ابھی اب ایک بھی فعل نہیں آیا, اب آگے آنے والا ہے. نعبدو, نستعین ہے نا, وہ آگے آئیں گا تو وہ فعل کے قلم میں جائے گا. تو ایک ہر سورہ کا ایسی ایک چارٹ بنے گی جس میں ایک ایک لفظ کتنی بار استعمال ہوا انشاءاللہ. اس مطلب اب 1931 رہ گئے, یہ 4 ہم نے بھی کیا. لازمی تھا اس میں سے آپ ورڈ کر کے ابھی 1931 رہ گئے نا. وہ ہاں جی 4 نکال دیجیے. 1931 طرح کے 4 ہی ورڈ تو کریں ہم. جسٹ ٹو بی شیور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو آپ یہ چھوڑ کے سمجھے تھے. پہلے نہیں. ٹوٹل روٹ ورڈ 1935. ٹھیک ہے, چلیے ابھی اگر صحیح بنتا ہے تو پہلے اس کو ٹی وی پہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ ہے تو اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے. اب جتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ 1 ہو 2 ہو 4 ہوں ہم یہ کام کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ جو ہے اس میں یہ پہلے سے تھوڑا سا مختلف کام ہے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھے تھے, میں ایسے ہی روٹ ورڈ بول دیتا تھا, یہ لوگ نکال لیتے تھے. اب نہیں, باقاعدہ اسٹڈی روٹ ورڈ کی تعداد کتنی ہے. نبی جان ہر دن گنتے جائیں گے. اب جو ہے 30 ہو رہ گئے. اب جو ہے پھر اس کے بعد اور 4 آ جائیں گے. حوصلہ رہے, ہلاری کا دوسرا ٹرم آنے سے پہلے انشاءاللہ اپن اس کو کمپلیٹ کرنے کی ایک کوشش. ٹرم کے لیے کافی ہے. ہاں ایک ٹرم کے لیے کافی ہے. نہیں, دوسرا ٹرم نہیں, ایک دوسرا الیکشن کا رزلٹ آنے تک 4 سال لگیں. کیلکولیٹ کر کے دیکھا میں کہ اگر ایک بھی کلاس ناکہ نہیں ہوئی تو مہینے میں 8 کلاس ہوتے ہیں, 12 مہینوں میں 6-9 کلاس ہوتے ہیں, رفلی 100 بھی پکڑے تو 4 سال میں 400 کلاسز ہوں گے. اور 400 کلاسز کو 6666 میں ڈیوائڈ کر لیجئے. روز تقریباً 10-15 آیتیں چھوٹی چھوٹی بڑی ملا کے انشاءاللہ ہر کلاس میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے ہی جس دن ہمارا وہ روٹ ورڈز کا کالم بھر جائیں گا تو ہم لوگ وہ ہو جائیں گے تھوڑے سے. نہیں, کافی. آپ ایک پورا سورہ, ابھی سورہ فاتحہ بھی ہو ہی نہیں ہے, پورا جب ہوگا تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل کیا ہوتا ہے آپ کا. جی اور اس کے بعد ہم آپ سورہ نبا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے الفاظ پہ آپ حاوی ہو گئے, کتنے الفاظ آپ سیکھ لیے. دین ایک ایک سورہ اس کے بعد آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے. بہت تیزی سے ہم کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ لوگ بھی 11
12 साल के बाद भी अटक जाते थे कभी हाँ, कभी दे यूज्ड टू गेट स्टक उनके लिए ये मेथड नहीं करना, मेथड थोड़ा सा चेंज कर। ज़्यादातर अटकते ही थे। अटकते थे ना तो इसलिए इसलिए फिर वापस भी आ रहे हैं। वो तो मैं अकेले ही आया ना तो मैं से। वो भी रास्ते में सवाल भी हुआ कि वापस क्यों आए। नहीं, वो भी वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा उनको। देख लो, अगर कुछ ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता है तो जिसको आप बुला सकते हैं वैसे भी। नहीं भी इरफान और तारिक कुरैशी भी आ रहे थे, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से रुक गया। ये इरफान तो उसकी वजह से दुकान क्या था कि वो काम भी है तो ही सेड कि मुझे कोई मिला आज उसको पहले अपन एक बार चेक कर लेंगे उसमें टीवी पे डाल के। अबरा, अच्छा, एक बार टीवी पे डाल ओहायो में के। नेक टू नेक जी 48.1 उसमें एक वो हो रहा कुछ, उसमें सेटिंग में जाके देखना है। 1 घंटे के बाद खुद ही नहीं ले लेगा माइक, क्यों ले रहा नहीं माइक। 9 and 48.6 हाँ, is leading. दुआ। Leading it about 0.3%. इतना कौन लीड कर रहा है? हिलरी हाँ? ओहायो में और नॉर्थ कैरोलिना में सर बिल्कुल नेक टू नेक जा रहे हैं. But she has a very good lead in Pennsylvania, 68 and Trump 28%. Michigan भी इसकी अच्छी lead है. Pennsylvania was a key state. Michigan was a key state for Trump. इसको वो जीतने थे हर हालत में. तो अब वहाँ जीत रहा है वो। नहीं, इसको बंद कर दो ना बेटा, ये सब कहेगा। नहीं भी दुआ हो रही ना तो अच्छा, दो आप करो। चलो नहीं, आप शुरू कर दीजिए। ये पर देगा हम जो कुरान की खलाश करिए, हमारे इसकी में बरकत दे, उसको अच्छी तरह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा। खैरत के साथ हमारे सारे इस कुरान की क्लास में बरकत अता फरमा और इसको अच्छी तरह समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इस क्लास में आने की तौफीक अता फरमा और हमारे इस पढ़ने को और समझने कबूल अता फरमा। अल्लाह